Good evening to all. I am Rachimule with my co-host Shubhi Kapoor. Congratulations once again. Your exceptional performance has truly won everyone's heart. A big thank you to Mr. and Mrs. Goyal and Principal Sir for kindly distributing the awards, and to all of you for encouraging the students with your cheers. I would like to thank our school again for encouraging our students, because not only these students are getting encouraged but also the young talents who are sitting before us. Remember, it's not winning that is most, but the spirit of participation and giving your best matter at all. Thank you all for showering such love for our brilliant students. Now let us move towards our next segment. By the way, Ruchi, do you know a human body has 206 bones, and the formula for the water is H2O, and the force binding us to the earth is called the gravity. Okay, that was too much information. लेकिन तुम अचानक से रैंडम साइंस फैक्ट्स मुझे क्यों बता रही हो? Sorry, I got a little carried away due to the excitement. Come on, don't keep me in suspense. Excitement of what? Excitement of our next act. The talented students of our school are going to present an outstanding performance about their beloved subject science. Oh, now I get why you were full of excitement. You are talking about the ones who are wizards without a wand. The people who have ability to create a greater world just by their knowledge. हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो अपनी काबिलियत से सालों से चले आ रहे अंधविश्वासों को चुटकियों में नष्ट कर सकते हैं. Well, hearing about them has given me goosebumps and got me excited too. वैसे साइंस के बारे में सुनकर मुझे सीवी रमन जी का एक थॉट याद आ रहा है. Science is not only the essence of independent thinking, hard work and not equipment. Such an incredible thought. वैसे क्या आप लोगों को पता है हमारी लाइफ विज्ञान के प्रयोग जैसी है. हम जितनी बार प्रयोग करेंगे पहले से कहीं बेहतर कामयाबी पाएंगे. Now, I am not able to control my excitement. So why don't you call them upon stage, Shubhi? Okay, so ladies and gentlemen, I request you to stick yourself with your seat and let us all welcome together the students of Science Escape with a huge round of applause. नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का हमारे साइंटिफिक स्किट में. मैं भी 4 वर्ड्स बोल ही देती हूँ. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार. हम मनुष्य जिनका साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है, वैसे तो बहुत ही विचित्र प्राणी है. हम मनुष्यों ने अपोलो 11 अंतरिक्ष यान की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति वाले स्मार्टफोन का निर्माण किया. फिर उसी स्मार्टफोन का उपयोग हमने इंस्टा पर रील्स देखने और सेल्फी लेने के लिए किया. विज्ञान उस नासमझ पड़ोसी की तरह है जो बार बार आपके कमरे में जाकर ये जानने की कोशिश में लगा रहता है कि आप कर क्या रहे हैं. और इंसान उस शरारती बच्चे की तरह है जो बार बार अपने पड़ोसी को तंग करने के लिए नई नई तरकीबें अपनाता रहता है. तो चलिए आज हम एक वैज्ञानिक, काल्पनिक और मजेदार कहानी देखते हैं. सोचिए कैसा लगेगा आपको अगर आपसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति एक वैज्ञानिक हो तो. क्या गुजरेगी उस बेचारे आदमी पर. सही बात है. ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे चौबे जी के साथ में. चौबे जी है एक रिपोर्टर और उनकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें है उनकी बीवी चौबाइन और फ्यूचर IITian बेटा छोटू. तो चलिए देखते हैं क्या होता है चौबे जी के साथ में. चलिए. पापा उठो ना पापा. पापा क्या हुआ? पापा दरवाजे पर कोई आया है पापा. अरे यार कौन आ गया इतनी सुबह सुबह.
अरे भाई तुम कौन हो? I am here to deliver white opaque liquid composed of water, protein, fats, lactose, vitamin, minerals and other biotic compounds. It serves as a primary source for growth and development. अरे भाई कहना क्या चाहते हो? पापा दूध वाला है पापा। अरे तो ऐसे बोलो ना, चलो 1 लीटर दूध दे दो फटाफट। अब ये क्या है? It is called burette, which is a cylindrical glass tube sealed at one end with a अच्छा, calibrated. ठीक है भाई, दूध दे दो। अरे यार इसे क्या हुआ था सुबह सुबह? अजी सुनती हो? अरे हाँ हाँ, सुनी तो रही हो इतने सालों से। ओ माय गॉड! अरे छोटू ये कौन है? पापा वाइफ है आपकी, होम मिनिस्टर। ओ माय गॉड, तुम्हारा तामझाम कहाँ गया? और अब ये क्या है? ये एक ऑटोमेटेड मशीन है जो मैंने अभी IST से इंपोर्ट करवाई है। ओ माय गॉड, बेच रही हो या बता रही हो? बता रही हूँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत लेट हो रहा है, खाना लगाओ। ओ माय गॉड, अब ये क्या है? साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इंसान को नीम और करेले का पराठा बना के खिला दोगी। खा लो ना, तुम्हारी क्या बिगड़ जाएगा। पापा खा लो ना पापा। अरे यार चुपचाप खाना हो तो खाओ, वरना ब्लैक होल में जाओ। अब तो खाना ही पड़ेगा, मजबूरी का नाम चौबे जी। दोस्तों, आप मिल चुके हैं चौबे जी से और उनकी फैमिली से। चलिए, तो अब हो गया है चौबे जी के ऑफिस जाने का टाइम। और रास्ते में होती है चौबे जी की मुलाकात एक ऐसे ऑटो ड्राइवर से जिसके अंदर समा गई है पाइथागोरस की आत्मा, और एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिसमें समा गई है हाइजेनबर्ग की आत्मा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है चौबे जी के साथ में। चलिए। अरे यार पहले ही इतना लेट हो गया है और ऑटो भी नहीं मिल रहा है। पापा जस्ट चिल पापा। ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया, चलोगे क्या? तू जिधर बोलेगा अपन तेरे को लेके जाएगा। अब तू ये बोल, तेरे को किधर जाने का है? अरे भैया खिंचाव जंक्शन से चलना था। वही ना, जो यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 2 किलोमीटर साउथ, इसके बाद 1 किलोमीटर वेस्ट में 4 स्क्वायर हेक्टेयर का एरिया है। अरे हाँ हाँ भैया वहीं जाना है। मैं तुम्हें 50 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से ले जाऊंगा, जिसके तुम्हें मुझे $3 देने पड़ेंगे। अरे हाँ भैया मैं दे दूंगा, अब चलिए। रुको, कहाँ भागे जा रहा है? जी सर जी। सर मैं तो बस यहाँ अपने किचौर जंक्शन जा रहा था, जो यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 2 किलोमीटर साउथ, इसके बाद 1 किलोमीटर वेस्ट पे 4 स्क्वायर हेक्टेयर का एरिया है। आतरी तूने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पढ़ा क्या? तूने स्पीड, मोमेंटम, डिस्टेंस तीनों बता दिया, वो भी एग्जैक्टली। अब तुझे तेरे एक्शन का रिएक्शन देना पड़ेगा। ये लीजिए आपके एक्शन का रिएक्शन। क्या कर रहे हैं? मजाक है क्या? अरे अरे सॉरी सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, पहले ही इतना लेट हो रहा है। तो अब अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, अब तू इलेक्ट्रॉन की स्पीड से गायब हो जा। तो अब आ चुके हैं चौबे जी उनके ऑफिस में, और ऑफिस में उन्हें मिलेगी सनसनी। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, सनसनी। यह सनसनी अपने काम के लिए बड़ी ही फेमस है। तो आइए देखते हैं सनसनी क्या खबरें लाती है। चलिए। अरे रामू, ऑफिस का टाइम हो रहा है। जी साहब जी। और सनसनी कहाँ है? क्या वो फिर लेट हो गई? जी साहब जी। वो बंदूक से निकली गोली थोड़ी ना है जो सुपरसोनिक स्पीड में आ जाएगी।
सर लो आ गई। मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। इतनी देर कहाँ थी? सर क्या बताऊं, आज तो गजब ही हो गया। आसमान पैरों तले और जमीन सर पर पहुंच गई। सही से बताओ हुआ क्या है? सर वहाँ टाइम स्क्वायर पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कबड्डी खेल रहे थे। मतलब? सर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया सर, बॉम्ब ब्लास्ट। ओ माय गॉड, बॉम्ब ब्लास्ट। एग्जैक्टली सर। तो तुमने न्यूज कवर करी या नहीं? सर न्यूज तो मैंने ऐसी कवर करी है, आप मेरी सैलरी डबल कर दोगे। अच्छा चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। अब चौबे जी और सनसनी पहुंच चुके हैं बॉम्ब ब्लास्ट की घटना स्थल पर, और साथ ही हमारे प्यारे प्यारे नेता थोड़ी राजनीति करने। तो चलिए देखते हैं राजनीति का खेल। हमारा नेता कैसा हो? न्यूट्रॉन भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? न्यूट्रॉन भाई जैसा हो। न्यूट्रॉन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद न्यूट्रॉन भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गली गली में शोर है, न्यूट्रॉन भाई चोर है। नेताजी, आपके प्रदेश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हट बुड़बक, ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये तो सरकार का काम है। पर सरकार तो कह रही है ये सब आपका कराया है। ये न्यूट्रॉन भाई, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार लगा सकता है क्या? जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, वैसे कोई सरकार हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। धन्यवाद नेताजी आपकी थ्योरी समझाने के लिए। हमारा नेता कैसा हो? न्यूट्रॉन भाई जैसा हो। 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, न्यूट्रॉन भाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, न्यूट्रॉन भाई का नाम रहेगा। न्यूटन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूटन भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।